یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ تعلیم سب سے بڑا طاقتور ہتھیار ہے جسے استعمال کر کے ہم دنیا بدل سکتے ہیں، اور اگر اچھے استاد مل جائیں تو کیا ہی کہنا۔ خوش نصیب ہیں وہ اسٹوڈنٹس جنہیں اچھے ٹیچرز ملتے ہیں جو دل سے اپنے شاگردوں کے لیے علم کے دروازے کھول دیتے ہیں، مشکلات میں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک بے حس قتل کے بارے میں ہے جس نے ایک اچھی ٹیچر کی جان لی اور سینکڑوں اسٹوڈنٹس کو اس کی حکمت سے محروم کر دیا۔ یہ ہے ڈیان ٹلی کی کہانی۔ ڈیان ایلیسن ٹلی کی پیدائش 6 جولائی 1946 کو امریکی ریاست ٹیکساس کے ایلس کاؤنٹی میں ہوئی تھی۔ والدین ولیم ٹیلر ایلیسن اور ٹوئی ماس ایلیسن زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن ان کی کوشش رہی تھی کہ ان کی اولاد اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ڈیان نے اسکول ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز آف فائن آرٹس حاصل کرنے کے بعد ٹیچنگ کیریئر کا انتخاب کیا تھا اور اس کام میں بہت مہارت حاصل کی۔ شادی کے بعد 2 بچے ہوئے، بیٹی ایلیسن اور بیٹا اسٹیون، لیکن ڈیان اور شوہر کی نہ بننے پر ان کی ڈیورس ہو گئی۔ جب دونوں بچے بڑے ہوئے، پڑھ لکھ کر قابل اور اپنے اپنے گھرانے میں اپنی فیملیز میں مشغول ہو گئے، ڈیان گھر میں اکیلی تھی، لیکن وہ بے مقصد نہیں تھی۔ وہ زندگی بہت جوش اور امنگ کے ساتھ گزار رہی تھی۔ اس کے جاننے والوں کا کہنا تھا کہ وہ فن لونگ، شرارتی، ہنس مکھ شخصیت کی مالک تھی۔ جہاں بھی جاتی اپنی خوش مزاجی اور پازیٹیوٹی سے سب کو متاثر کرتی تھی۔ ڈیان ایڈورڈ ٹی رابنسن اکیڈمی میں کام کرتی تھی اور اسکول کی بنیاد کھڑی کرنے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔ رابنس اکیڈمی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا جنہیں پڑھائی میں دشواری ہو۔ اسکول کے کافی بچے ایسے تھے جنہیں کوئی بھی نیا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے زیادہ مدد اور زیادہ وقت کی ضرورت تھی۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جنہیں نفسیاتی بیماریاں تھیں یا جن کے ڈرگ اور کرمنل ریکارڈز تھے۔ ایسے بچوں کو پڑھانا ہر کسی کے بس کا کام نہیں، لیکن ڈیان کے پاس نہ ختم ہونے والا صبر تھا۔ اسکول کی ایڈمنسٹریشن اور کلیگز ڈیان کو میریکل ورکر کا نام دیتے تھے، ایک ایسی ٹیچر جو معجزے کر دکھاتی تھی، سیکھنے کا جذبہ ان اسٹوڈنٹس میں جگاتی تھی جو عام طور پر پڑھائی سے دور بھاگتے تھے۔ نومبر 2004، 58 سالہ ڈیان ٹلی اپنی بہترین زندگی سے مطمئن تھی۔ اس کے طالب علم ترقی کر رہے تھے۔ اسے بیٹی اور داماد نے دوبارہ نانی بننے کی خوشخبری دی تھی اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ ایک محبت بھرے تعلق میں جڑی تھی۔ بوائے فرینڈ 300 میل دور شہر ڈیلس میں میونسپل کورٹ جج تھا۔ ڈیان نہیں جانتی تھی کہ آنے والی تھینکس گیونگ کی چھٹی کے دوران وہ اسے پروپوز کرنے والا تھا۔ 23 نومبر 2004 ڈیان اسکول کو نہیں گئی اور اس نے کسی کو فون کر کے اپنی غیر موجودگی کی وجہ تک نہیں بتائی۔ اس کے کولیگز اس کے لیے پریشان ہو کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ دروازے پر کافی دیر کھٹکھٹانے کے بعد ایک ٹیچر کھڑکی میں جھانک کر دیکھتی ہے اور اسے لیونگ روم میں سارا سامان بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ڈیان کے کولیگز پولیس کو فوراً فون کر دیتے ہیں۔ پولیس افسران وہاں پہنچتے ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس گھر میں ڈکیتی ہوئی تھی۔ ڈیان نہایتی صفائی پسند اور سلیقے مند عورت تھی اور گھر میں سب کچھ الٹ پلٹ پڑا تھا۔ الماریوں کا سامان ہر جگہ بکھرا ہوا تھا، اچھی خاصی توڑ پھوڑ کی گئی تھی۔ گھر سے بہت سارا الیکٹرانک کا سامان غائب تھا۔ ڈیان کے قیمتی زیورات
चोरी हुए थे, जिनमें उसकी डायमंड की अंगूठी और रोलेक्स घड़ी भी शामिल थी। क्योंकि डायन के घर में किसी अजनबी आदमी के फिंगरप्रिंट्स नहीं पाए गए थे, कहीं से खून नहीं मिला था और डायन की 1998 फ्लीटवुड कैडिलैक ना घर के ड्राइववे पर खड़ी थी ना ही गराज में, तो डिटेक्टिव्स को उम्मीद थी कि डायन किसी काम से बाहर निकली होगी और वो नहीं जानती होगी कि उसके घर में चोरी हुई है। लेकिन घर की तलाशी के दौरान उन्हें कुछ ऐसे इशारे मिलते हैं जो खतरे का सबूत थे। 1. डायन की 357 मैग्नम पिस्टल जो वो अपनी हिफाजत के लिए रखती थी, वो पिस्टल गायब थी। 2. लिविंग रूम के सोफे में एक गोली का सुराख था। गोली सोफे को चीरते हुए फर्श में जाकर धंसी थी। 3. कमरे के फर्श पर एक खाली कॉन्डम रैपर मिला था। 4. डायन के टेनिस शूज जमीन पर पड़े थे, एक जूते का शूलेस गायब था। 5. डायन का पर्स घर में मौजूद था, वॉलेट में शनाख्ती कार्ड्स थे, लेकिन डायन का बैंक कार्ड, एटीएम का कार्ड वहां नहीं मिला। 6. किचन टेबल पर 3 एटीएम रिसीट्स थे, जिन पर शाम 8 बजे का वक्त लिखा था और तीनों बार एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश नाकाम हुई थी। कोई भी अपना एटीएम का पिन नंबर 3 बार भूलकर रिसीप्ट हिफाजत से क्यों रखेगा? इस घर में कुछ बहुत मशकूक हो रहा था। डिटेक्टिव्स बैंक से राब्ता करते हैं और उनसे दरखास्त करते हैं कि वो डायन के बैंक अकाउंट को डीएक्टिवेट ना करें। अगर बैंक कार्ड दोबारा इस्तेमाल होता है तो सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो शख्स पकड़ा जा सकता है। डायन टिली के लापता होने की खबर सारे शहर में फैल गई थी। सैन एंटोनियो के रहने वालों ने जगह जगह डायन की गुमशुदगी के पोस्टर्स लगाए। डायन के चाहने वालों ने उसके लिए विजिल्स रखे, जिसमें उसकी सलामती और वापसी की दुआएं मांगी। इन्वेस्टिगेटर्स डायन के बॉयफ्रेंड से राब्ता करते हैं। वो एक बाइज्जत आदमी था और वो अपनी सॉलिड एलिबाई देता है। कहता है, मैं अपने शहर डालस से बाहर निकला ही नहीं हूँ। 22 नवंबर शाम के 6 बजे मेरी डायन से फ़ोन पर काफ़ी देर तक बात हुई है। वो बहुत अच्छे मूड में थी, उसे कोई परेशानी नहीं थी। हमने थैंक्सगिविंग के वीकेंड पर मिलने का भी इरादा किया था। एहतियातन डिटेक्टिव्स डैलस जाने वाली फ़्लाइट्स की जांच पड़ताल करते हैं। क्या डायन ने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सफ़र किया था? अफसोस, एयरपोर्ट की फ्लाइट रिकॉर्ड से उन्हें कोई नई मालूमात हासिल नहीं हुई। डिटेक्टिव्स फिर डायन के स्टूडेंट्स पर नज़र डालते हैं। आखिरकार उसका रोज़ाना ऐसे नौजवानों से वास्ता पड़ता था जो सोसाइटी के ठुकराए हुए थे। चंद स्टूडेंट्स तो जेल में सज़ा काट चुके थे। क्या पता डायन से कोई स्टूडेंट नाराज़ हुआ था और उसने बदला लेना चाहा। डिटेक्टिव्स को स्कूल में तफ्तीश जारी रखते हुए एक बहुत अहम सबूत मिलता है। डायन के घर से मिलने वाली हर एटीएम रिसीट में एक ख़ास कोड नंबर था, जिससे एटीएम का पता, एटीएम की लोकेशन ज़ाहिर हुई। एक शेल पेट्रोल स्टेशन जो डायन के घर से सिर्फ 1 मील दूर था। पेट्रोल स्टेशन में हाई क्वालिटी के सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। वीडियो में एक मर्द एटीएम की तरफ बढ़ता है, पैसे निकालने की कोशिश करता है और 3 डिक्लाइन ट्रांजैक्शन की रिसीट लेकर निकल जाता है। आदमी काला था या हिस्पैनिक, वो लंबा और पतला था। उसकी उम्र 30 से 40 साल के दरमियान थी। 20 मिनट बाद एक मुख्तलिफ एटीएम में एक नौजवान लड़की नजर आती है। वो सही पिन नंबर डालकर $400 निकालती है। सीसीटीवी कैमरों में वो आदमी और नौजवान लड़की एक कैडिलैक में बैठते हुए नजर आते हैं। ये गाड़ी बिल्कुल डायन की गाड़ी की तरह थी। अगले दिन सुनसान इलाके में किसी राहगुजर ने खेत में एक गाड़ी जलती हुई देखी। पुलिस अफसरान वहां पहुंचते हैं और लाइसेंस प्लेट देखते ही उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी डायन टिली की थी। कैडिलैक की सीट में कोई नहीं था और गाड़ी की डिग्गी भी खाली थी। अभी भी उम्मीद बाकी थी कि डायन जिंदा होगी। एक और राहगुजर पुलिस स्टेशन जाकर कहता है, जलती हुई गाड़ी के करीब एक सफ़ेद रंग की पिकअप ट्रक खड़ी थी। मैंने लाइसेंस प्लेट नहीं देखी, लेकिन ड्राइवर एक काला आदमी था और उसके बराबर एक लड़की बैठी थी। उस शख्स को सीसीटीवी फुटेज वाले मर्द और लड़की की तस्वीर दिखाते हैं।
और वो उन्हें फौरन पहचान लेता है। डिटेक्टिव्स ने डायन टिली के घर में छानबीन जारी रखी थी और उन्हें खुशकिस्मती से एक और एविडेंस मिला। किचन में शराब की बोतल के निचले हिस्से में एक फिंगरप्रिंट था। डिटेक्टिव्स का मानना था कि डाकू ने चोरी के दौरान ग्लव्स पहने हुए थे, लेकिन शराब पीते हुए उसने अपने नंगे हाथों से बोतल पकड़ ली थी। ये फिंगरप्रिंट फोरेंसिक टीम के हवाले किया जाता है ताकि वो दरियाफ्त कर सकें कि ये फिंगरप्रिंट नेशनल डेटाबेस में पहले से मौजूद है कि नहीं। इस दौरान पुलिस ने आवाम को इस केस की तफसीलात देने के लिए ऑफिशियल पोस्टर्स शाये किए जिन पर डायन की तस्वीर थी और मुश्तबा अफराद की इंफॉर्मेशन। सस्पेक्ट नंबर 1 एक दुबला पतला लंबा काला मर्द था। सस्पेक्ट नंबर 2 एक भारी जसामत की नौजवान लड़की। सस्पेक्ट की गाड़ी एक सफ़ेद पिकअप ट्रक थी। क्योंकि डायन अपनी कम्युनिटी में जानी पहचानी शख्सियत थी, शहरियों ने होशियार और चौकन्ना रहने का इरादा किया। पुलिस हेलीकॉप्टर्स के जरिए पेट्रोल शुरू की गई और ये कोशिश जल्द रंग लाई। एक मोटेल की पार्किंग लॉट में सफ़ेद रंग का ट्रक खड़ा था और पुलिस ने 2 अफराद को रोका जिनका हुलिया बिल्कुल सस्पेक्ट की तरह था। वो 33 साला रॉनी नील और उसकी बेटी 15 साला पर्ल क्रूज थे। दोनों डायन की गुमशुदगी में मुलविस होने से इनकार करते हैं। रॉनी और उसकी बेटी को अलग अलग इंटरोगेशन रूम्स में ले जाते हैं। पहले रॉनी से पूछगछ की जाती है, डायन की गाड़ी तुम्हारे पास कैसे आई? वो कहता है, मुझे कैडिलैक एक कार वॉश में खड़ी मिली थी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, चाबियां इग्निशन में लगी थी। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे रहा नहीं गया भाई, मैंने गाड़ी ले ली। सवाल किया गया, एटीएम कार्ड कैसे मिला? रॉनी ने कहा, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, एटीएम कार्ड गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में रखा था। सच में? और उसके साथ एक पेपर चिपका था जिसमें पिन नंबर लिखा था। और गाड़ी क्यों जला दी? वो बताता है कि उसे बाद में डायन टिली की गुमशुदगी का इल्म हुआ था और डर था कि उसे कसूरवार ठहराया जाएगा, तो उसने गाड़ी जला दी थी। डिटेक्टिव्स जानते थे कि रॉनी नील के मुंह से झूठ के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। तहकीक करने के बाद ये बात सामने आई कि रॉनी कई बार चोरी और डकैती के जुर्म में जेल में सजा काट चुका था और हाल में ही रिहा हुआ था। पुलिस को ये भी पता चला कि रॉनी का लॉन मोइंग बिजनेस था, घास और गार्डन की देखभाल का, जिसके सिलसिले में उसकी मुलाकात डायन टिली से हुई थी। डायन ने रॉनी को अपने गार्डन में दरख्त और चंद झाड़ियों को काटने के लिए रखा था। और तो और बोतल पर पाए जाने वाले फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट लेबोरेटरी से वापस आ जाता है। फिंगरप्रिंट रॉनी का था। रॉनी के मोटेल रूम से डायन की 375 कैलिबर पिस्टल, उसका सूटकेस और इलेक्ट्रॉनिक्स बरामद होते हैं। डायन के जेवरात रॉनी पॉन शॉप को बेच चुका था। रॉनी नील और पर्ल क्रूज से लाख पूछा जाता है कि डायन कहाँ है, लेकिन वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते। उनके खिलाफ सबूतों के ढेर जमा हो रहे थे। इसके बावजूद बाप बेटी ढीठ बने रहे। इन्वेस्टिगेटर्स रॉनी के सेल फोन रिकॉर्ड्स फोन कंपनी से निकलवाते हैं। 22 नवंबर की रात रॉनी ने अपनी एक्स वाइफ एलाइजा स्टैनली को फ़ोन किया था और सेल फोन के सिग्नल्स उस सेल टावर से मिल रहे थे जो डायन के घर से करीब थे। एलाइजा स्टैनली को थाने बुलाया जाता है और वो कहती है, मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ ये जानती हूँ कि 22 नवंबर की रात रॉनी ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि उसके हाथ बहुत सारे पैसे लगे हैं और वो मुझे शॉपिंग करवाना चाहता है। 4 दिसंबर 2004 एलमो हाइट्स यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में डायन टिली के जानने वाले बड़ी तादाद में जमा होते हैं और उसके लिए दुआ करवाई जाती है। उसके चाहने वाले अभी भी इस आस में थे कि वो कहीं से जिंदा सही सलामत वापस आ जाएगी। रॉनी को तो चुप लगी थी, तो डिटेक्टिव्स पर्ल पर दबाव डालते हैं, उसके ज़मीर को जगाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार 10 दिन पुलिस की हिरासत में रहने के बाद वो सब कुछ उगल देती है। उस रात क्या हुआ था और डायन कहाँ थी? बेक्सर काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट रोनाल्ड बेनेट और दीगर अफसरान बताई हुई जगह जाते हैं।
डायन के घर से 15 मील दूर सीनेक लेक ड्राइव पर खेती बाड़ी के इलाके में डायन टिली की लाश सड़क से 150 फीट दूर झाड़ियों के नीचे छुपाई गई थी। लाश गली हुई थी, लेकिन साफ वाजे था कि उसे कई गोलियां लगी थी और उसके हाथ एक नीले पॉलिएस्टर शू लेस से बांधे हुए थे। पोस्टमार्टम के दौरान फोरेंसिक साइंटिस्ट को डायन के जिस्म से रॉनी नील का DNA मिला। ये सबूत था कि रॉनी ने उसे रेप किया था। 15 साला पर्ल क्रूज डिटेक्टिव्स को बताती है कि डायन से पहली बार मिलने के बाद ही रॉनी ने उसे शिकार बनाने का इरादा कर लिया था। वो एक मालदार औरत थी और अकेले बड़े घर में रहती थी। डायन ने रॉनी को लॉन का काम दिया और जब रॉनी ने उससे बताया कि वो 10 बच्चों का बाप है, तो डायन ने रॉनी को अपनी लॉन का झूला तोहफे में दिया। रॉनी ने आहिस्ता आहिस्ता डायन का इत्तेमाद जीता, उसे 1-2 बार पर्ल से भी मिलवाया। जब भी डायन और पर्ल का आमना सामना हुआ, डायन ने लड़की से प्यार से बात की थी, उसके स्कूल और पढ़ाई के बारे में सवाल किए थे, उसकी नेल पॉलिश की तारीफ की थी। रॉनी ने डायन को एक शुक्रिया का कार्ड भेजा जिसमें उसने डायन से कहा, आप मेरी बेटी को बहुत पसंद आई हैं। क्या आपको मैक्सिकन खाना पसंद है? हम आपकी दावत करना चाहते हैं। पर्ल का कहना था कि 22 नवंबर की रात उसने डायन के दरवाजे पर दस्तक दी थी और जब डायन ने दरवाज़ा खोला तो पर्ल ने उससे कहा था, हमारा ट्रक पास की रोड पर ख़राब हो गया है, आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या? डायन ने लड़की को घर में दाखिल ही किया था कि पर्ल ने उसे अपनी बंदूक दिखाई, धमकाया और घर के साइड डोर से बाप को घर में दाखिल कर लिया। रॉनी ने डायन के हाथों को शूलेस से बांधा, फिर डायन की पिस्तौल और ATM मांगी और पिन नंबर भी। इसके बाद रॉनी स्कॉच की बोतल से शराब पीता है। जब पर्ल पिस्तौल की नोक पर डायन की चौकीदारी कर रही थी, रॉनी पेट्रोल स्टेशन जाता है ATM से पैसे निकालने। तीनों कोशिशों के बाद उसे एहसास हुआ कि डायन ने उसे गलत पिन कोड दे दिया था और वो घर तैश में वापस आता है, डायन को डराता है, डायन की बिल्ली को मारने की धमकी देता है और सोफे में एक गोली चला देता है। डायन पिन नंबर बता देती है। रॉनी डायन को कमरे में ले जाकर रेप करता है। पूरा वक्त पर्ल वहीं खड़ी हुई पहरा दे रही थी। फिर बाप बेटी घर का सारा कीमती सामान डायन की गाड़ी में जमा करते हैं। तीनों डायन की गाड़ी में बैठकर मुख्तलिफ ATM जाकर $400 निकालते हैं। अब रॉनी के पास सही पिन नंबर था तो उसे डायन की ज़रूरत नहीं थी। वो डायन को वीरान खेत में ले गया। सारा वक्त डायन उन दोनों से अपनी जान की भीख मांग रही थी। रॉनी ने डायन को घास में लेटने का कहा और उस पर गोली चला दी। डायन चिल्लाने लगी, इट बर्न्स, जल रहा है, जल रहा है। बेरहमी से रॉनी ने डायन पर मजीद 4 गोलियां और चलाईं। ना जाने डायन अभी भी कैसे जिंदा थी और जिंदगी के आखिरी लम्हात उसने अपने लिए नहीं बल्कि पर्ल के लिए दुआ की। धीमी आवाज में उसने कहा, ब्लेस दिस चाइल्ड, इस बच्ची का भला हो। उसके आखिरी अल्फाज थे क्योंकि रॉनी ने आखिरी गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। 11 दिसंबर 2004 डायन टिली के जनाजे का दिन था। 200 के करीब रिश्तेदारों और दोस्तों ने फर्स्ट यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में उसके फ्यूनरल में शिरकत की और डायन को गेटवे मेमोरियल पार्क के रोजमॉन्ट सेमेटरी में दफनाया गया। उसके मकबरे पर मदर, टीचर, फ्रेंड लिखवाया गया। अप्रैल 2006 रॉनी नील को डायन के कत्ल का मुजरिम पाया गया और लीथल इंजेक्शन के जरिए सजाए मौत की सजा सुनाई गई। जेल में मौत की सजा का इंतजार करते हुए सन 2011 में रॉनी ने दवाएं खाकर खुदकुशी कर ली। रही बात पर्ल क्रूज की, बाप बेटी की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि पर्ल प्रेग्नेंट थी। DNA टेस्टिंग से साबित हुआ कि रॉनी ही पर्ल के बच्चे का बाप था। पर्ल को 30 साल कैद की सजा सुनाई गई। टेक्सास यूथ फैसिलिटी में उसने सिर्फ 5 साल गुजारे और फिर वो रिहा कर दी गई। 22 नवंबर 2005
डायन की पहली बरसी के मौके पर उसकी याद में रॉबिन्स एकेडमी में एक ब्रॉन्ज की तख्ती स्कूल के मेन हॉल में लगाई गई। डायन की जिंदगी और उसके बेशुमार कारनामे उस पर नक्श किए गए हैं। इस तकरीब में मौजूद मेहमान खुसूसी डायन की माँ टॉय एलिसन मौजूद थी। स्कूल के सामने की जमीन पर एक छोटा बाग लगाया गया है जिसमें टेक्सास के मुकामी फूल पौधे उगते हैं। गार्डन के बीच में एक पत्थर की बेंच रखी गई है जिस पर डायन का नाम और ये कौल लिखा गया है, A great soul serves everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again. एक अजीम रूह हर वक्त सबकी खिदमत करती है। एक अजीम रूह कभी नहीं मरती, वो हमें बार बार इकट्ठा करती है। दोस्तों, ये थी डायन टिली की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना